गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप उनसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का न्यूआंस्ड, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग, साउंड एक्सेट्रा। न्यूआंस्ड का मतलब होता है सूक्ष्म बारीकियाँ होना, सूक्ष्म भेद, छोटा छोटा अंतर होना चीज़ों में, उसे बोला गया है न्यूआंस्ड। बारीकियाँ, सूक्ष्म भेद या अंतर, दैट इज कॉल्ड न्यूआंस्ड। Synonyms है subtle, refined, delicate, detailed, fine. Antonyms है appalling, awful, disgusting और dreadful. Exuberant, used about a person or his or her behavior, full of energy and excitement. Exuberant का मतलब होता है एकदम जोश से भरे हुए रहना, उत्साहपूर्ण, एकदम जीवंत रहना, उसे बोला गया है exuberant. Exuberant के synonyms हैं ebullient, cheerful, enthusiastic, luxuriant, lush और lively. Antonyms है depressed, sad और down. Contraction, the process of becoming or of making something become smaller or shorter. Contraction का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कमी करना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है contraction. Synonyms है compression, abbreviation, reduction, shrinkage. Antonyms expansion, extension, increase और dilation. Propelled, to propel something in a particular direction means to cause it to move in that direction. Propelled का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आगे की तरफ धकेलना, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उसे बोला गया है propelled. Synonyms है driving, pushing, moving, launching, motivating. Antonyms है undynamic, dull, off और static. Faltering, to lose confidence and determination. Faltering का मतलब होता है एकदम से अस्थिरता होना, लड़खड़ाना या डगमगाना, विश्वास खोना, उसे बोला गया है faltering. Synonyms है stumble, hesitate, stagger, hobble, lurch. Antonyms है maintain, persist, continue, remain और steady. Gloom, a feeling of being sad and without hope. Gloom का मतलब होता है एकदम से उदासीपूर्ण रहना, उदासी से भरे हुए रहना, निराशापूर्ण, उसे बोला गया है gloom. Synonyms है depression, sadness, misery, unhappiness. Antonyms है happiness, cheerfulness, joy और hope. Prevailed, to exist or be common in a particular place or at a particular time. Prevailed का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचलन में होना, विद्यमान होना, उसे बोला गया है prevailed. Synonyms है reign, dominate, predominate, exist. Antonyms है depart, discontinue, turns into और has become. Recession, a period when the business and industry of a country is not successful. Recession का मतलब होता है व्यापार में या किसी भी तरह के देश में, अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कमी आना, मंदी का दौर, उसे बोला गया है recession. Synonyms है regression, depression, downturn, slump, decline. Antonyms advance, progress, boom और growth. Resilient, strong enough to deal with illness, a shock और change. Resilient का मतलब होता है परिवर्तन को सहने में सक्षम होना, समर्थ होना, उसे बोला गया है resilient. Synonyms है strong, tough, durable, stable. Antonyms है fragile, delicate, inflexible और rigid. Dispelled, to dispel an idea or a feeling that people have means to stop them having it. Dispelled का मतलब होता है किसी चीज़ में शंका को दूर करना, हटाना, रिमूव करना, किसी भी चीज़ को, उसे बोला गया है dispelled. Synonyms है remove, dissolve, disperse, chatter. Antonyms है collect, gather, assemble और emphasize. Soared, if the amount, value, level or volume of something soars, it quickly increases by a great deal. सोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना, उसे बोला गया है सोज. सिनोनिम्स है माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड, इंक्रीज्ड. एंटोनिम्स है collapsed, dropped, decreased और plummeted. Slumped, used about economic activity, prices to fall suddenly and by a large amount. Slumped का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आना, उसे बोला गया है slumped. Antonyms है decline, drop, fall, sink or collapse. Antonyms है surge, win, increase और progress.
vulnerabilities, the state of being vulnerable or exposed. vulnerabilities का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुकपन होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, अति संवेदनशीलता, उससे बोला गया है vulnerabilities. एंटोनिम्स है fragilities, vulnerability, exposure, weakness. एंटोनिम्स है immunities, resistances और securities. nimbly, a nimble or agile manner with quickness and lightness and ease. निम्बली का मतलब होता है एकदम चुस्ती, तेज तर्रार, फुर्तीलेपन से कोई कार्य करना, तेजी के साथ, उसे बोला गया है निम्बली. सिनोनिम से एजली, डेक्स्टरली, एडोइटली, डेफ्टली और स्विफ्टली. एंटोनिम से क्लम्सली, स्लोली और ऑकवर्डली. रेन इन, टू रेन इन समथिंग मीन्स टू कंट्रोल इट. रेन इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में करना, कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है रेन इन. सिनोनिम से हार्नेस, कर्ब, check, control. Antonym से keep up, make a fuss, give way to. Inflation. Inflation is a general increase in the prices of goods and services in a country. Inflation का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, मुद्रास्फीति, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन. Synonyms से increase, expansion, rise, extension, growth. Antonym से deflation, decrease, collapse, reduction और contraction. Benign. A benign substance or progress does not have any harmful effect. Benign का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई काम, ऐसे कोई कदम उठाना जिसका कोई हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव ना हो, या फिर दयालु या उदारशील व्यक्ति, उसे भी बोला गया है benign. सिनोनिम से kind, benevolent, harmless, gentle. एंटोनिम से hostile, malignant, bad और harsh. Streak. If someone has a streak of a particular type of behavior, they sometimes behave in that way. Streak का मतलब होता है एक अलग तरह से बिहेव करना, करना, व्यवहार का एक विचित्र तरीका, उसे बोला गया है streak. सिनोनिम से buzz, sprint, discolor और hasten. एंटोनिम से delay, idle और lag. Curb. To limit or control something, especially something bad. Curb का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रोकथाम करना, नियंत्रण करना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है कर्ब. सिनोनिम से रिस्ट्रेन, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट, सप्रेस, लिमिट और चेक. एंटोनिम से एनकरेज, ऐड, सपोर्ट, हेल्प और असिस्ट. एमिड, इन द मिडल ऑफ, अमंग. एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है एमिड. सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट, ड्यूरिंग. एंटोनिम से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे. कंस्ट्रक्टेड. If something constricts you, it limits your action so that you cannot do what you want to do. Constricted का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित करना, नियंत्रित करना, सीमित करना, उसे बोला गया constricted. Synonym से restricted, confined, cramped, narrow, limited. Antonym से ramped up और well-rounded. Dither. When someone dithers, they hesitate because they are unable to make a quick decision about something. Dither का मतलब होता है dithering या dither. इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का डिसीजन ना ले पाना, उलझन में होना, किसी तरह का हिचकिचाना, उसे बोला गया डिथर. सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले, अनश्योर. एंटोनिम से सर्टेन, डिटरमाइंडेड, आर्जुअस और ऑब्सोल्यूट. रिजेक्ट. इफ समवन रिजेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पीस ऑफ वर्क, दे अरेंज और ऑर्गेनाइज इट इन अ डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट. रिजेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम को अलग अलग मेथड से करना, अलग अलग विधियों से करना, जिससे कि और अच्छे तरीके से वो काम किया जा सके, बेहतर तरीके से कार्य को करने के लिए विधि को ही अपनाना, उसे बोला गया है रिजेक्ट. सिनोनिम से रिवैम्प, रीवर्क, एडजस्ट, रिक्यूब, मॉडिफाई. एंटोनिम से ब्रेक, क्रश, डैमेज और डेमोलिश. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है. सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है मैन्यूवरिंग. इफ़ यू मैन्यूवर समथिंग into or out of an awkward position, you skillfully move it there. मैन्यूवरिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई से बाहर निकलने के लिए कोई प्लानिंग करना, कोई युक्ति, कोई तिकड़म, कोई चालबाजी, पैंतरेबाजी या कौशलबाजी करना, उसे बोला गया है मैन्यूवरिंग. सिनोनिम से ऑपरेशन, माकिनेशन, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग. एंटोनिम से अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक. स्प्लैश डाउन. ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन वाटर. स्प्लैश डाउन का मतलब होता है किसी भी जहाज़ का पानी में जो उतरना, स्पेसक्राफ्ट का यदि पानी में उतारना, उस सेंस में इस वर्ड का यूज़ हुआ है स्प्लैश डाउन का. सिनोनिम से हर्टल, डेज, कलेप्स, डाइव, प्लंज और स्मैश.
एंटोनिम्स एडवांस, असेंट और क्लाइंब। इंटरसेप्ट, if you intercept someone or something that is traveling from one place to another, you stop them before they get to their destination. इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी को बीच में रोक देना, कहीं कोई जा रहा है तो बीच में ही उसको रोकना, अवरोध डालना, बाधा डालना, उसे बोला गया है इंटरसेप्ट। सिनोनिम से स्टॉप, ब्लॉक, प्रिवेंट, कैच, सीज। एंटोनिम से कंटिन्यू, फॉरवर्ड, अकोमोडेट, रन और हेल्प। सर्वेलांस, सर्वेलांस इज द careful watching of someone, especially by an organization such as the police or the army. सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, चौकसी या रखवाली करना किसी की, उसे बोला गया सर्वेलेंस। सर्वेलेंस के सिनोनिम से वॉच, सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, ओवरसाइट। एंटोनिम से केयरलेसनेस, इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट। पेनिनसुला, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप या ऐसा भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो, उसे बोला गया पेनिनसुला। सिनोनिम से कैप, हेडलैंड, आइलैंड, फॉरलैंड। एंटोनिम से इनलैंड, मेडो, वैली और ट्रेंच। ग्रेव, अ ग्रेव इवेंट और सिचुएशन इज वेरी सीरियस, इंपॉर्टेंट एंड वरिंग। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई कष्टदायक होना, कोई चीज़ गंभीर, चिंतायुक्त, उसे बोला गया है ग्रेव। सिनोनिम से सीरियस, सीवियर, क्रिटिकल, डेंजरस, डायर। एंटोनिम से सिली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल और फनी। कॉन्फ्लिक्ट, अ फाइट और एन आर्गुमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विचारों में आपसी मतभेद होना, विरोध होना, टकराव होना, किसी तरह के संघर्ष की स्थिति, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम से डिस्प्यूट, फाइट, बैटल, स्ट्रगल और कॉम्बैट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, हार्मनी, काम, अकॉर्ड और कॉन्कॉर्ड। इन्वेजन, एन एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। इन्वेजन का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह की घुसपैठ करना, आक्रमण करना, हमला करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम से रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। sanctions, sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की अवहेलना करे तो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। सिनोनिम से पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवॉर्ड्स और डिबार्स। अर्ज, इफ़ यू अर्ज दैट समथिंग बैड इज ट्रू, यू से इट बट डू नॉट प्रूव इट। अर्ज का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना बिना प्रमाण के, उसे बोला गया है अर्ज। सिनोनिम से क्लेम, असर्ट, डिक्लेयर, अफर्म, स्टेट और कंटेंट। एंटोनिम से कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, डिसएग्री और रेप्यूडिएट। डिस्ट्रस्ट, इफ यू डिस्ट्रस्ट समवन दैट समथिंग or something you think that they are not honest, reliable or safe. डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का अविश्वास करना, संदेह करना, शक करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रस्ट। सिनोनिम से डाउट, मिसट्रस्ट, सस्पेक्ट, सस्पिशन और क्वेश्चन। एंटोनिम से ट्रस्ट, होप, एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस। डिटेरियोरेशन, इफ समथिंग डिटेरियोरेट्स इट बिकम वर्स इन सम वे। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समस्या या कठिनाई का और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, डिजेनरेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इम्प्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। रेमिनिसेंट, इफ यू से दैट वन थिंग इज रेमिनिसेंट ऑफ अनदर, यू मीन दैट इट रिमाइंड्स यू ऑफ इट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ के कारण किसी चीज़ की याद आ जाए, याद दिलाने वाला या स्मरणशील, उसे बोला गया है रेमिनिसेंट। सिनोनिम से एल्यूसिव, रिमाइंडफुल, सजेस्टिव, मेमोराइज्ड। एंटोनिम से फॉरगेटफुल, फेंट, इंसिपिड और अनरेमिनिसेंट। हॉस्टिलिटी, ये लास्ट वर्ड है आज का। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना होना, उग्रता दिखाना, दुश्मनी, किसी तरह की बैर, शत्रुता या लड़ाई, उसे बोला गया है हॉस्टिलिटी। सिनोनिम से फाइटिंग, वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्बैट और बैटल। एंटोनिम से पीस, अपीजमेंट, सीज फायर और डी एस्केलेशन। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।